So hello students, welcome back once again to the second chapter of your accounting for managerial decision subject. Now comparative balance sheet, when I talk about it. The format remains the same as vertical balance sheet. आपने देखा है. The title is comparative vertical balance sheet. ठीक है. In the last video we saw comparative vertical income statement P&L account. ठीक है. So let's move ahead with the topic. As मैंने comparative chapter के initial video में आपको बताया था format कैसा जाता है, calculation कैसे, it remains the same. ठीक है. Now to start with balance sheet, like always I would suggest, as you can see here in my solving for you all, especially particulars, 2019 amount, that is previous year amount, 2020, that is current year amount, change in amount, current year minus previous year, and change in percentage. ठीक है. So to start with, in this sum you can see in share capital, in sources of fund, we start with sources of fund जिनको हम liability के नाम से जानते हैं. So to start with, it comes with equity share capital. In this sum, the amount you can see 88,000 and 88,000 in both the years. There is no preference share capital. It comes to reserves and surplus, which has reserves 35,000 in the previous year and 42,000 in the current year. So ऊपर जब difference, जब दोनों number same है, there is no difference, so we just put a dash in change in amount and dash in change in percentage. Nothing to worry apart from this. Reserves में 42,000, the current year minus previous year 35,000, 7,000. Positive amount because हम current year minus previous year कर रहे हैं, like I always say, 7,000 into 100 divided by the original amount, or you can say the previous year amount, 35,000. हम हमेशा बचपन में भी जब हमें सेल्स बढ़ गया है या प्रॉफिट बढ़ गया है या एक अमाउंट मेरा मार्क्स बढ़ गया है 40 से 60 हो गया, सो 40 से 60 इंक्रीज कितना है 20 इंटू 100 में किससे डिवाइड करूंगा, 60 से नहीं, वो तो करंट है, प्रीवियस से डिवाइड करता था देखने के लिए कि हाउ मच आई हैव इम्प्रूव, राइट. सेम concept applies here. 20% increase we can see in reserves. Loan fund है, secured loan, debentures है, 8% debenture, the amount remains the same, 22,000. So no change in amount, no change in percentage. Finally we get capital employed as the total amount of balance sheet. Sources of fund part, 1,42,000 in the previous year and 1,52,000 in the current year, and the difference is 7,000. So 4.83% increase in the overall capital employed. Let's see total investments. इतना पैसा जो हमने जमा किया है, sources of fund पैसा रेज करके, funds रेज करके अप्लाई कहाँ पे किया. So fixed assets 97,000 का प्रीवियस ईयर में था, इस साल 1,21,000 का हो गया. तो क्या इतना ज्यादा पैसा हमने रेज किया है? लेट्स सी, आगे पता चलेगा. 24,000 बढ़ा दिया हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, विच इज 24.74%. ठीक है. इतने ऑलमोस्ट 25% से हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट ये साल बढ़ा दिया है. ऑडिटर्स यही सब देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स यही सब देखते हैं कि क्यों बढ़ाया, बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं. और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स हैव इंक्रीज. बाकी कोई इन्वेस्टमेंट अलग कैटेगरी में नहीं दिख रहा है. वर्किंग कैपिटल में अगर आप देखोगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, द अमाउंट इज 1,03,000 पहले था, अभी 1,25,00,000 हो गया, 1,25,000. इट हैज इंक्रीज बाय 22,000. मतलब इन्वेस्टमेंट्स में भी इन स्टॉक, डेटर्स बढ़ गया, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ गया है. ये सारे चीजों में हमने जो ऊपर फंड्स इकट्ठा किए थे सोर्सेस ऑफ फंड्स में, वो पैसा यहाँ डाला. ठीक है. करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ गया है 55,000 से 94,000, लाइक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, समथिंग लाइक दैट. 39,000 से बढ़ गया. It has almost increased by 70.90%, that is 71% से करंट लायबिलिटी बढ़ा. वर्किंग कैपिटल ओवरऑल देखते हैं, सो कम हो गया है अनफॉर्चुनेटली 48,000 से 31,000, 17,000 से वर्किंग कैपिटल कम हुआ है. ठीक है. तो ये हमारा नेगेटिव बैलेंस में जाएगा, ये हमारा. ठीक है. ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज चेंज इन अमाउंट हम हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं. 39,000 पॉजिटिव अमाउंट है, 94,000 माइनस 55,000. बट यहाँ पे इफ यू सी द वर्किंग कैपिटल हैज गॉन डाउन. सो एज यू कैन सी द वर्किंग कैपिटल क्यों रेड्यूस हुआ, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज बढ़ गया. एसेट बेचारे ने इतना जमा किया था, करंट लाइबिलिटी एक बड़ा अमाउंट आ गया, माइनस करके
नेगेटिव हो गया फाइनल अमाउंट। सो 31,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो माइनस 17,000 एंड देयरफॉर द परसेंटेज आल्सो गोस 35.42 माइनस में। ये दर्शाता है कि इस साल हमारा वर्किंग कैपिटल कम हो गया, जो नेगेटिव अमाउंट आपको दिख रहा है ब्रैकेट में। फाइनली फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट एंड वर्किंग कैपिटल का अमाउंट टोटल करके व्हाट वी गेट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड से टैली होगा 7,000 से बढ़ गया है टोटल इन्वेस्टमेंट which is 4.83%. So this is how you actually analyze while doing the sum. ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में कमेंट्स ओन वर्ड्स में कुछ भी लिख दोगे, आपको करते करते एनालाइज करते रहना है, कुछ पॉइंटर्स साइड पे नोट डाउन करने हैं। इन एग्जाम एटलीस्ट 5 to 6 कमेंट्स आप लिखिए ओवरऑल एनालिसिस करके, कौन सा आपको कम होता दिख रहा है, उसके वजह से क्या फर्क पड़ा है, एंड देन फाइनली यू विल बी समिंग अप फॉर योर गुड मार्क्स और फुल मार्क्स. So this is it from my side in comparative statement. One example we took of the format, one example I took of profit and loss account, and this video on balance sheet. I hope so you have understood this. Go through the videos once again to understand it much better, the logics, the concepts and everything. All the best. Stay tuned for the next chapter, trend analysis. Take care till then, everyone. Bye bye.